let's start with today's session. A very warm good morning to everybody present here, respected our guest speaker. I welcome you all on the second day of this career guidance workshop. I would like to call Sandeep sir to offer garland to Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji and also light our holy lamp. Sir, please. On the first day, that is yesterday, we had our inaugural ceremony of this workshop, where Head of the Department of Sociology, Professor O.P. Bhartiya sir, Student Advisor of Faculty of Social Sciences, Dr. Rajiv Dubey sir, and respected guest speakers from Political Science, Geography and Economics were present. Afterwards, the career counseling of various subjects was held, where Dr. Bhagisha Suman ma'am addressed the students about the career prospects in political science and addressed their queries respectively. Similarly, we had Dr. Seema Rani ma'am to give insights about geography, and she gave us an idea about its wide range of possible career options available in this subject. And Professor C.D. Adhikari, sir, to guide the students of sociology and address their queries respectively. Today's schedule is as follows. We are going to have insights by the professors in psychology, followed by history and economics. We have session 4th, where Professor Sandeep Kumar sir would counsel the students of psychology and give insights about the possible career options in this very subject, followed by session 5th, where Professor Rakesh Raman, who would guide the students of economics and enlighten them about the different paths they can pursue in their careers. And in the 6th session, we have Professor Dhruv Kumar Singh to make our students aware of all the possible career options in history. Now for further proceedings, I would like to call my co-host Akhilesh to take over. Hello, welcome everybody to the second day of this workshop that is being conducted on the career guidance. जैसा कि आपको ब्रीफ किया गया मेरी को-होस्ट के द्वारा कि ये वर्कशॉप प्रोग्राम आप लोगों की करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का एक छोटा सा प्रयास है हमारी सोसाइटी की तरफ से, ताकि आपके दिमाग में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होके जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं मदद कर सकें थोड़ा सा एड्रेस करने में। कल जैसा कि बताया गया कि कई सारे सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स जो थे पॉलिटिकल साइंस और रेस्पेक्टिव अदर सब्जेक्ट्स में भी जो है कंडक्ट किया गया। आज हमारे पास देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन लाइन, दैट इज साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो अब मेजरली जो लोग मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों ने आज नया ज्वाइन किया हमारे लिए, तो मैं बताना चाहूँगा द होल वर्कशॉप इज कंडक्टेड ऑन 6 सब्जेक्ट्स ऑफ 6 मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज एंड वी हैव इनवाइटेड मेनी गेस्ट स्पीकर्स जो कि आप लोगों को आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में एक आइडिया देंगे कि किस तरीके से आप अगर ग्रेजुएशन में हैं, आप मास्टर्स में हैं या फर्दर आपके पास क्या करियर चॉइसेस हो सकती हैं, आप फ्यूचर में जाके कौन कौन से करियर ऑप्शंस को परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि एक लेमैन की तरीके से हम आते हैं इस यूनिवर्सिटी में और हमें आइडिया नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन दैट लाइन सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज साइकोलॉजी फॉर टुडे। उससे पहले मैं आपको आज के वर्कशॉप के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। जो वर्कशॉप का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव द प्रोफेसर्स एड्रेस, और प्रोफेसर्स एड्रेस के बाद में you will be given a chance to ask your queries and doubts. Okay, so let's start the session now. Friends, there is a famous law in psychology, a theory which states, I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. So, the perpetrator of this law is trying to say कि हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है जो हमें लग रहा है कि हम क्या हैं, हम वो नहीं होते हैं।
क्योंकि हमें बहुत कुछ, हमें कॉन्फिडेंस होता है, हमें अपनी एबिलिटीज पे या इनसिक्योरिटीज पे शक होता है। सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है वो बिल्कुल अलग है, आप उससे भी वाकिफ नहीं है। आपको आपकी पर्सनालिटी जो आपको लगती है वो होती है कि आपको क्या लग रहा है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, वेदर यू आर अ गुड स्पीकर, वेदर यू आर अ गुड लर्नर और जो भी। आई वुड लाइक टू एड ऑन टू दिस पॉइंट दैट व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर कंसिडरेशंस, जब आपकी करियर की बात होती है, आपकी फ्यूचर ग्रोथ की बात होती है, आई थिंक यू शुड बी व्हाट यू थिंक यू आर। आपका पर्सनल आई एम व्हाट आई थिंक आई एम। तो मुझे लगता है इसके लिए बहुत अच्छी इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें गाइडेंस की ऑब्वियसली जरूरत होती है, एंड दैट इज वी आर डूइंग इट सो दैट यू कैन बी व्हाट यू थिंक यू आर। ओके, सो इन दैट लाइन वी हैव प्रोफेसर संदीप कुमार सर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी of Faculty of Social Sciences, and he is a professor in our university, and he is a very renowned professor, well known for his exhaustive sessions on psychology, various concepts of psychology. So, first in line, I would like to give him a brief introduction about sir. सर का रिसर्च जो मेन टॉपिक्स है दैट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, एक स्पेसिफिक डोमेन में आगे जाता है। उसके बाद में सर के रिसर्च इंटरेस्ट और भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन थियरी मैनेजमेंट में सर के एक्सपर्टीज एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो। तो चूंकि समय थोड़ा सा लेट हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो मैं आज के लिए इन्वाइट करना चाहूँगा जानवी को कि वो आए और सर को सैपलिंग के साथ फेलिसिटेट करने का कुछ करें। जानवी प्लीज, आप लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं प्रोफेसर संदीप कुमार सर को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और हमें साइकोलॉजी जैसे एक अच्छे सब्जेक्ट के बारे में, एक करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सेट especially for initiating this kinds of discourse. And in psychology we basically talk about two types of motivation: intrinsic motivation and extrinsic motivation. So sometimes when we organize some programs, when you join those programs, so it seems it's a kind of extrinsic motivation, कुछ मिलेगा इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? Now this program is like हमें कुछ चाहिए इसलिए हम इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है? So when there is intrinsic motivation, you are more involved. आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, this is important for me. So I would like to congratulate team the Discourse Faculty of Social Science for even having such kind of idea that we need guidance, especially from the people who have some expertise and experience in the field. Let us start with a question. So all of you are here for a specific goal which you have thought for your life. Is it? Yes, sir. Yes, sir. So can you please tell one by one what are your goals for which you have come to study in BHU and even you want to study in some other institutions after BHU? One may be like you want to become a professor like me. This is the very primary thing which people do. They want to go in academics. Do you have anything else apart from these academics in your mind which you want to become in future? You can be a psychologist. So when you say psychologist, it means you are talking about a career in counseling, a career as a clinical psychologist, a career as a neuropsychologist. Okay?
इसके अलावा कोई करियर आपने सोचा है कि आप और क्या कर सकते हैं? We can work in NGOs. Yes, there are many NGOs who work for social issues. आप NGOs में काम कर सकते हैं. What else? आर्मी के बारे में सोचा है आपने? ठीक है, आर्मी में एक पोजीशन होती है साइंटिस्ट बी. ठीक है, मास्टर्स के बाद यदि आप नेट हैं, क्वालिफाइड हैं, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर साइंटिस्ट बी, एंड साइंटिस्ट बी इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आप उसमें जा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जैसे एकेडमिक्स में जाएंगे. एकेडमिक्स में क्या है कि आप ये होता है कि आप BHU में या किसी कॉलेज में टीचर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं. आप IITs में भी टीचर्स हो सकते हैं, आप IIMs में भी टीचर्स हो सकते हैं. इवन आपके जो कई सारे सीनियर्स हैं वो IITs में फैकल्टी हैं, वो IIMs में भी फैकल्टी हैं. अब फर्क कैसे पड़ता है कि आप IITs या IIMs में जा कैसे सकते हैं, या इवन BHU में आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं? तो तरीका वही है, या तो आप मास्टर्स के बाद PhD कीजिए. ठीक है, मास्टर्स के बाद PhD करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल होता है जिसको आपको पास करना है, वो आपको नेट चाहिए. ठीक है, तो जैसे ही आप मास्टर्स में आते हैं हम कहते हैं कि आप UGC नेट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, वो आपके पास होना चाहिए. सो इफ़ यू गेट अ बेटर स्कोर, ठीक है, यदि आप JRF का स्कोर आपके पास है तो आप BHU में भी PhD कर सकते हैं, आप किसी भी IITs में जाके PhD कर सकते हैं, किसी भी IIM में जाके PhD कर सकते हैं. बशर्ते आपके पास एक अच्छा प्रपोजल होना चाहिए, और प्रपोजल तैयार करने में we as a teachers we can help you. ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है यदि आप किसी IIT या IIM में जाके PhD कर लेते हैं? उसका बेनिफिट यह है कि वहाँ पे भी आपको इंडक्ट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बन जाती है. यू आर PhD फ्रॉम IIT और यू आर PhD फ्रॉम IIM, तो वो एक रास्ता आपके लिए खुल जाता है. यूजुअली यूनिवर्सिटीज से जाते हैं, लेकिन थोड़े कम जाते हैं. सो दे प्रीफर कि जो IITs के PhD हो या जिन्होंने बाहर से जाके PhD किया हो, उनको हम अपने यहाँ इंडक्ट करें. तो एक ऑप्शन ये है कि आप PhD करने के लिए बाहर चले जाइए. ठीक है, तो मास्टर्स के बाद आपने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है. आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलेगी, कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप है. वो स्कॉलरशिप्स यूज करके आप PhD के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्री में या US में या कनाडा में जाके PhD कर सकते हैं. जब वापस आते हैं बाहर से PhD करने के लिए, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी खास करके जो IITs IIMs में, तो दे प्रीफर पीपल हु हैव परस्यूड PhD फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज. दूसरे देश से जाके आप PhD किए हैं और उनकी जो रैंकिंग है, यदि बेटर रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी से PhD किए हैं, तो वो उनको प्रीफर करते हैं. तो ये तरीका है. तो साइकोलॉजी में ये बड़ा फायदा है कि आप यहाँ से, मतलब यहाँ भी काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज में काम कर सकते हैं, आप किसी NIT में जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है वहाँ भी टीचर हो सकते हैं, किसी भी IIT में का जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है वहाँ टीचर हो सकते हैं, किसी भी IIM का जो OB and HR का जो एरिया होता है वहाँ जाके प्रोफेसर हो सकते हैं. तो ये ऑप्शंस फैकल्टी टीचिंग लेवल पे. दूसरा ये है कि आप, जैसे अभी साइकोलॉजिस्ट की बात है, कि साइकोलॉजिस्ट में एक फायदा है कि आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ठीक है, इनिशियली लोग क्या करते हैं कि आप BA किया, MA किया, MA करने के बाद आप, अभी तक MPhil होता था, तो MPhil बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस ऑफर करते हैं. तो आप जैसे रांची में है, आगरा में है, दिल्ली में है, रोहतक में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जाके आप कर सकते हैं. तो वैसे केसेस में जैसे ही आप MPhil कर लेते हैं तो एक इंटर्नशिप 6 महीने का होता है. तो एक OPD सिस्टम, जैसे यहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ पे OPD का होता है. तो OPD बेसिकली हेल्प्स यू टू प्रिपेयर द केस स्टडी. ठीक है, आप केस स्टडी तैयार करना सीख जाते हैं, डायग्नोसिस करना सीख जाते हैं, और उस डायग्नोसिस के साथ साथ उस व्यक्ति को ड्रग्स चाहिए या दवा चाहिए या उसको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं.
तो यदि ड्रग्स चाहिए तो आप उसको रेफर कर देते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, और यदि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी चाहिए तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काउंसलिंग साइकोथेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीइंग ए काउंसलर, बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप इस तरीके से इनिशियली लोग स्टार्ट करते हैं किसी प्रैक्टिशनर के साथ जाके आपने प्रैक्टिस किया कुछ समय तक, उसके बाद आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। तो ये रास्ता है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कीजिए, या किसी दूसरे का जो क्लिनिक है आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। तो एक जो कॉमन प्रैक्टिस है कि जो साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिल के काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे फ्रेंड है निमान से, उन्होंने एमफिल किया हुआ है, यहाँ पे एक डॉक्टर झवर का क्लिनिक है, वहाँ पे उनके साथ वो काम करते हैं। उनका काम क्या है कि वो डायग्नोसिस में मदद करते हैं। जैसे केस स्टडी तैयार किया, केस स्टडी के बेसिस पे उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, वो डायग्नोज कर लेते हैं, और डायग्नोसिस के बाद लेवल्स पता चल जाएगा ये किस लेवल का डिप्रेशन है या किस लेवल का सिजोफ्रेनिया है, तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो जहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है काउंसलिंग करते हैं, जहाँ थेरेपी की ज़रूरत होती है थेरेपी करते हैं, और जहाँ ड्रग की ज़रूरत होती है जो साइकियाट्रिस्ट वहाँ पे हैं वो ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एज ए साइकियाट्रिस्ट आप जो भी मेंटल इलनेसेस है उसको ड्रग्स के थ्रू आप ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के थ्रू उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो एक करियर ऑप्शन एक आपका ये हो गया। दूसरा एक है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का एक ऑप्शन होता है। जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की तरह आपको सेलेक्ट करते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द पोजीशंस वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, लेकिन इनिशियली मास्टर्स के बाद यदि आप वहाँ चले जाइए या पीएचडी के बाद चले जाइए तो कुछ साल के लिए आपको जॉब वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये तो ये इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एकेडमिक्स हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह हो गया। अब एक नई फील्ड आ गई है कि फॉरेंसिक में यदि आप जाना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, तो फॉरेंसिक में यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज खुली हुई है। यूपी में भी खुली है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, फिर गांधीनगर में है, अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पर गया था, वहाँ पे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे भी आप जाके यहाँ से बीए किया और वहाँ से जाके आपने मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स करके फॉरेंसिक साइंस में ही आपने पीएचडी कर लिया। तो जो भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जॉब्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो उनका जो बेसिकली काम है, खास करके जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस होते हैं, बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं, उसमें जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी के इश्यूज है उस तरीके से कंसल्टेंट वहाँ पे काम करते हैं। जितने भी फैकल्टी वहाँ पे हैं मैंने देखा है कि वो अधिकतर एज ए कंसल्टेंट इन लोगों के साथ काम करते हैं, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक उनको प्लेसमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो एक ऑप्शन है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आप चले जाइए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपका है ही। प्लस अब यहाँ फर्क ये पड़ता है कि जो गोल है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको कोई ट्रेन पकड़नी है बनारस रेलवे स्टेशन से या दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, या फ्लाइट पकड़नी है बाबतपुर एयरपोर्ट से, तो ये अलग अलग करियर्स मान लीजिए। ठीक है, तो अलग अलग करियर्स के लिए अलग अलग पाथ भी चाहिए, और अलग अलग पाथ के लिए या अलग अलग टाइप के करियर के लिए अलग अलग तरह की पर्सनालिटी भी चाहिए। सो आपको खुद असेस करने की जरूरत है कि कौन सा करियर हमारे लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, या जो आपके साथी है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि हम किस फील्ड में बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपने को ट्रेन करने की जरूरत है, अपने को ग्रूम करने की जरूरत है। तो इस लेवल पे आप पूछ सकते हैं कि अभी हम क्या करें। ठीक है, अभी इस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, एनी आइडिया कि अभी आपको क्या करना चाहिए? एज ए स्टूडेंट आपकी ड्यूटी अभी क्या होना चाहिए अपने करियर के लिए को बनाने के लिए?
अभी बहुत सिंपल है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए बढ़िया से। वॉट एवर यू आर स्टडिंग, चाहे आप जिस लेवल पे हैं, आप ये पार्ट 1 में हैं, पार्ट 2 में हैं, पार्ट 3 में हैं, मास्टर्स में हैं, तो जो भी कोर्सेस हैं उसको बढ़िया से पढ़िए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है आपकी, आपकी इवन ड्यूटी है कि यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी कोर्सेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो कोर्सेस बढ़िया से पढ़िए। फिर उसके बाद आता है कि जो भी आपने नॉलेज गेन किया है उसको आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं, ठीक है। सो स्किल की बात आती है, तो जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आप एडमिनिस्टर करते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंटरप्रिटेशन करना आपको आता है कि नहीं, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है। कोई केस स्टडी आप लिख पाते हैं कि नहीं, वो एक एस्पेक्ट है। तो वो सारी चीजें आपको करने के, तो नॉलेज के साथ साथ स्किल भी डेवलप करनी है। अब स्किल डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो कहती है कि यदि आपको स्किल डेवलप करना है तो आप इंटर्नशिप कीजिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि क्लास 6 से आप इंटर्नशिप में जाइए। क्लास 6 से बच्चों को इंटर्नशिप सजेस्ट किया गया है कि वो जो इकोनॉमिक्स के हैं या एग्रीकल्चर के हैं या जिस भी फील्ड के हैं, जाके कोई भी एक्टिविटी कहाँ होती है वहां जाके ऑब्जर्व करें। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि बेटा दूध कौन देता है, तो पता चलता है कि दूध वाला देता है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बच्चा तो देखता है कि दूध जो है दूध वाला लेके आता है, दे देता है, लेकिन उसको हम कभी गांव लेके नहीं गए, हमने कभी उसको दिखाया नहीं कि किस तरीके से मिल्क बनता है या किस तरीके से फार्म में चीजें उगाई जाती हैं। देन दे विल अंडरस्टैंड, ठीक है, देन दे विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अपने फील्ड में डेवलप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इंटर्नशिप का भी कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको किसी प्रैक्टिशनर के साथ जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको चीजें क्लियर होगी। जैसे हमने कहा कि आप जो हमारे मित्र हैं उनके यहाँ जाके इंटर्नशिप कीजिए, व्हाट यू विल सी कि वो केस स्टडी कैसे लिखते हैं। सो इनिशियली आपको एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट होता है कि ऑब्जर्वरशिप देते हैं। जैसे यहाँ पे IMS में भी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री है, वहाँ पे एक ऑब्जर्वरशिप, यदि हम रिकमेंड करते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट को एक महीने के लिए ऑब्जर्वरशिप दीजिए, तो 1 महीने का ऑब्जर्वरशिप आप वहाँ जाके देखेंगे कि वो कैसे केस हिस्ट्री लेते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरीके से उसका केस शीट तैयार करते हैं। वो एक एस्पेक्ट है कि किस तरीके से, तो दैट बिकम्स ए लर्निंग फॉर यू। तो जैसे आप ये सीख लेंगे तो फिर खुद जब आपको करना होगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एक ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है। इसी तरीके से यदि आप OBHR में OD कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, OBHR का भी जो एरिया है आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी आजकल OD कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मास्टर्स में यदि आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंजीनियर, ये सारे कोर्सेज पढ़े हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप काम कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे रिक्रूटमेंट में आप उनके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो कर सकते हैं, फिर OD कंसल्टेंट की तरह आप काम कर सकते हैं। तो एक करियर आपका उस फील्ड में है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन से शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कई बार आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं उसके बाद शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप लॉ में जाते हैं, आप मैनेजमेंट में जाते हैं, तो अलग अलग फील्ड्स हैं। लॉ में आप जाएंगे तो वहाँ अलग करियर है, मैनेजमेंट भी आपके लिए अलग करियर है। इसके अलावा बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाके आपको हेल्प मिलता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बहुत सारे लोग आप टॉप रैंकर्स देखिए तो 20 में कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो साइकोलॉजी लेके तैयारी कर रहे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आप जाके अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आपको तय करने की जरूरत है कि आपका जो गोल है वो क्या है।
ठीक है, तो आप अपने गोल के हिसाब से तय कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो इनिशियली आप जो भी कोर्सेज हैं उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद एक टीम आप बना लीजिए। अपने जो यूजी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो पीजी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, एक टीम इनकी होनी चाहिए और उनका रोल ये होना चाहिए कि दे नीड टू सी द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज के लिए लिंक्डइन का एक ऑप्शन है, आप लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल एक होनी चाहिए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। जैसे कल ही हमको आया कि आप के लिए ये सजेस्टेड जॉब्स हैं, इसमें डायरेक्टर एचआर की पोजीशन है। भैया हमें अभी ज़रूरत नहीं है डायरेक्टर एचआर की, अभी हम जहाँ हैं ठीक है, ठीक है। तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो इंटर्नशिप्स हैं, इवन ऑनलाइन इंटर्नशिप भी अवेलेबल है। कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेस आपके फील्ड से रिलेटेड अवेलेबल है, ठीक है। अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। उनको क्लास के अलावा जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज को पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। सर्टेनली इट विल हेल्प यू जब आप किसी भी पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये आपको हेल्प करेगा और अल्टीमेटली आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। यदि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ क्लासेस हम जाके बात करना है। एमफिल तो बंद भी करने का है। एमफिल के लिए वो बीएससी और एमएससी का एक प्रोविजन लेके आ रहा है। हाँ, इन फ्यूचर क्या है कि वो एमफिल भी नहीं, अब उसको चेंज करने जा रहे हैं। जो अभी एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं कि आपको शुरू से ही आप जो भी इंस्टीट्यूट्स है जैसे CIP है या यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे कि आप शुरू से ही BSc साइकोलॉजी में एडमिशन देंगे और BSc साइकोलॉजी में वो MSc PhD तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो एमफिल का कॉन्सेप्ट खत्म करके शुरू से ही आपको उस एरिया में जाना। जैसे मैनेजमेंट में भी है, आप इंटीग्रेटेड MBA में जाते हैं तो इंटीग्रेटेड MBA में क्या है कि आप 12th के बाद ही वो आप उस फील्ड में चले जाते हैं। अब आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप इनिशियल लेवल पे ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है। और यदि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आप BSc उसी इंस्टीट्यूट से करिए जहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवेलेबल है, तब आप जाके उस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि ये रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ भी आ जाए कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्लिनिकल सेटअप भी तैयार करके देना पड़ेगा यदि हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो क्लिनिकल सेटअप में OPD के थ्रू आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में है वहाँ पे होगा और फिर उसके बाद जाके आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फिलहाल जितने लोग कर रहे हैं वो एमफिल के लिए सोच सकते हैं, लेकिन ये एमफिल बाद में चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है वो बाद वालों के लिए, लेकिन आप के लिए अभी तक एमफिल ऑप्शन है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर, एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर प्राइवेट प्रैक्टिस अगर वाराणसी के लिए कुछ रोड मैप बताइए और वाराणसी में क्या स्कोप है एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर? प्राइवेट लोग हैं हमारे यहाँ से पढ़े हुए लोग जो है, नई सुबह है और कई सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके पास रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का वो लेने के लिए वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे एमफिल एक ट्रेनिंग है, ठीक है, उसी से रिलेटेड और भी ट्रेनिंग है जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो किस किस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे अगर। सर, जो माइल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, सीवियर नहीं होते, तो उनके में काउंसलिंग के लिए तभी RCI का अप्रूवल लेना जरूरी है या जब थेरेपिस्ट बन रहे हैं तभी RCI का अप्रूवल लेना जरूरी है? फिलहाल तो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आपको RCI का चाहिए, लेकिन अभी नया कोड ऑफ कंडक्ट आया है, ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट होना है। वो ये कहता है कि आप जिस भी फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड से रिलेटेड आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अभी थोड़ा उसमें वेट करने की जरूरत है क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सर बट नेट जेआरएफ देने के लिए आपका मास्टर्स होना जरूरी है। अभी तो तो फिर नेट रिसर्च में कैसे जा सकते हैं? जेआरएफ के लिए आपको अभी तो है, तो एनईपी पूरी तरह से लागू होगा तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ तब्दीली हो, लेकिन अभी मास्टर्स जरूरी है नेट जेआरएफ। ठीक है। Sir, we have some questions from Google Form. Excuse me, sir. Can we do MSc in psychology after doing BA in psychology? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते। यहाँ पे बीएससी करके आएंगे तभी एमएससी देंगे और बीए करके आएंगे तो एमएससी। हमारी यूनिवर्सिटी में यही कॉलेज है। Any further questions from the audience? So we'll move towards some Google questions. There is a question from a person who wants to know about the counseling in the field of human resource management, to be specific, having a psychology background. So please address on that. काउंसलिंग स्पेशली जो बच्चे हमारे पास जो कोर्सेज हैं, जैसे किसी ओबी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने पढ़ा और उसके साथ काउंसलिंग भी आपने पढ़ी, ठीक है, तो दैट कैन हेल्प यू टू वर्क एज ए काउंसलर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस में भी कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है किस तरह के कोर्सेज आपने पढ़े हैं। उन कोर्सेज को पढ़ने के बाद यदि जो भी रिक्रूटर है आपको अप्रोप्रिएट कंसीडर करता है तो दे कैन हायर यू। Okay, so there is one more question specific about being a child psychologist. Is there any difference from the normal procedure, or is it the same as? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। आप जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में भी चाइल्ड साइकोपैथोलॉजी आपने पढ़ा है। जैसे एक तो साइकोपैथोलॉजी है, एक नॉर्मल है, तो दूसरा एक उसकी जगह यदि चाइल्ड साइकोपैथोलॉजी आपने पढ़ा, एडोलेसेंट साइकोलॉजी आपने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज आपको यदि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पढ़ना चाहते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई पेपर्स आपने पढ़ा तो देन यू आर स्पेशलिस्ट इन दैट एरिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस तरह के स्पेशलाइजेशन है, हम लोग बकेट ऑफ कोर्सेज ऑफर करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सारे उसमें बकेट में अवेलेबल है। उससे यही हमने कहा कि आपका गोल क्या है, अपने गोल के हिसाब से आपको अपना पाथ तय करना है। पाथ मतलब किस किस तरह के कोर्सेज पढ़ेंगे, किस किस तरह की ट्रेनिंग आप लेंगे, वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हमको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो जाहिर है कि हम साइकोपैथोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। यदि हमको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में या कॉर्पोरेट में जाना है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ेंगे, तब वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए में हम जा सकते हैं। तो इस आपका गोल क्या है उसके बेसिस पे आपको कोर्सेज चूज करना है। Sir, being a non-psychology student, what should we learn from psychology and how it impact our lives? Sir, I'm not non-psychology student. हर व्यक्ति जो एक नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट है उसको साइकोलॉजी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? बिकॉज स्टडिंग साइकोलॉजी कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपको खुद को समझने में मदद करेगा और दूसरों को भी समझने में मदद करेगा, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति यदि जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर होता है वो डिटरमाइन होता है दो तरीके से, एक तो हमारे जो जेनेटिक ट्रेड्स हैं हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, और दूसरा जो भी हमारी लर्निंग है, सोशल लर्निंग, जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ या जिस सोसाइटी में हमारा सोशलाइजेशन होता है उनके साथ जब हम सीखते हैं तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो भी हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। तो यदि आप साइकोलॉजी थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग की, एंड यू कैन मेक योर लाइफ बेटर एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स टू लिव देयर लाइफ इन अ बेटर। दूसरे को भी आप मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना जीवन बढ़िया तरीके से जिए। बेसिकली साइकोलॉजी को हम लोग कहते हैं कि एक हेल्पिंग प्रोफेशन,
ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है आप उसको मदद करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ काउंसलिंग जो कि हम यूज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कोई दिव्यांग बच्चे का प्रॉब्लम आ गया, कोई बच्चा कोई सोशो इकोनॉमिक रीजन की वजह से परेशान है, वो एक प्रॉब्लम आ गई, कोई रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं वो भी। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड है। कि आप साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्फ्लिक्ट, जैसे सिंपल है कि कॉन्फ्लिक्ट, यदि लोग अलग अलग तरह के ओपिनियन रखेंगे, अलग अलग तरह का इंटरेस्ट उनका होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो नाउ यू नो द बेसिक, जो बेसिक्स है कि आपको जैसे एक काम करना है, एक व्यक्ति अलग तरीके से करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से करना चाहता है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी। ठीक है, जैसे फैमिली या सोसाइटी जो हम जिस जमात में हम रहते हैं, तो जैसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है तो उसका डेली लाइफ में फायदा होता है नहीं, तो वो जो उनको कैसे हम किताबी भाषा वो तो समझ नहीं सकते, तो कैसे वो एडजस्टमेंट में हमारे फायदा होगा, उनको हम सिखाए जो जैसे वो किताबी भाषा नहीं समझ सकते जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। कई बार फैमिली में जो भी इश्यूज होते हैं, जैसे एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक एग्जांपल हम बताते हैं कि एक हमारे मित्र हैं और वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे बिकॉज ऑफ फैमिली इशू ये था कि वो दिल्ली में जॉब करते थे, उन्होंने कानपुर में घर खरीदा हुआ। तो वाइफ कहती थी कि कानपुर वाला घर बेच दो, दिल्ली में एक दूसरा मकान खरीदो। हालांकि दिल्ली में भी 3 कमरे के मकान में रहते हैं। ठीक है, उनका ये कॉन्फ्लिक्ट था कि यदि हम कानपुर वाला घर बेच देते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो वो घर नहीं बेच रहे थे, तो पत्नी नाराज थी और जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई कि आज की डेट में पत्नी अपने घर रहती है, वो अपना दिल्ली में रहती है। अब ये क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आपकी समस्या नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रीड है वो रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। किसी की ग्रीड ज़्यादा है तो रिलेशंस तो चलेंगी नहीं, एक रीज़न है। तो अल्टीमेटली ऐसे रिलेशनशिप्स में लास्ट में एक ऑप्शन होता है कि इट्स बेटर टू बी अपार्ट, आप अपने रास्ते, क्योंकि एक जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो नाउ दे आर सेपरेटेड। ये भी एक इशू है। हालांकि सेपरेशन अच्छा नहीं है, बेहतर ये होता है कि एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की समस्या को समझ के साथ में रहें, तो बेस्ट ऑप्शन तो वो है। लेकिन कई बार इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाती है। जब भी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, एक दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने वाले हो जाए, तो उससे सेपरेट होना भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। ठीक है, हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी में साइकोलॉजी टुडे कोई और मैगजीन आती है? बहुत सारे मैगजीन्स हैं, साइकोलॉजी टुडे तो नहीं, लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या है कि रिसर्च रिलेटेड मैगजीन्स मंगवाते हैं। ठीक है, तो उसमें साइकोलॉग्स या साइकोलॉजी टुडे करके मैगजीन्स नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनको आप रिक्वेजिशन दे सकते हैं कि ये मैगजीन है और इसको हम लोग मंगाना चाहते हैं, या आप हमें लिख के दे दीजिए, हम डिपार्टमेंट से भिजवा देंगे कि ये मैगजीन लाइब्रेरी में खरीदी है। तो बेटर ये होगा कि आप खुद से उसको कहिए और लाइब्रेरी में जाकर उनको एक रिक्वेजिशन दे दीजिए। एक तो काम कर ही दीजिए, दूसरा आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी को भी लिख दीजिए कि ये मैगजीन हमें इसको पढ़ना है, करेंगे इसको डेवलप करें। Sir, I happen to be a non-psychology student, having my majors in sociology. As a person with higher life experiences and being a psychologist, what advice would you give to younger minds like us so that we can have better relationships, we can manage our course in a day-to-day life, and how can a person like me who happens to be introvert, how can we manage this introversion? Why do you feel that introversion is a negative thing? I suppose I don't feel introversion happens to be a negative thing. ठीक है, कई बार लोग कहते हैं कि यदि व्यक्ति शाई है या इंट्रो
अच्छा ट्रेट नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति एक्स्ट्रावर्ट या हर व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक मेकअप, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वे यू आर सोशलाइज, इसकी वजह से एक स्पेसिफिक तरह की पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाती है। सो इट इज बेटर टू एक्सेप्ट इट। पहला तो है कि आप जैसे हैं वैसे उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हमको एक्स्ट्रावर्ट बनना चाहिए, ठीक है, यदि हम एक्स्ट्रावर्ट रहेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, तो आप एक्स्ट्रावर्ट बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रयास करना होगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा, इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो अटेंड करने होंगे, आपको डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना होगा। तो एक्स्ट्रावर्ट की जो क्वालिटीज है वो डेवलप कीजिए। आपको सोशिएबल होना चाहिए, टॉकेटिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, तब आप एक्स्ट्रावर्ट हो गए। हम भी आप ही की तरह थे जब स्टूडेंट थे, लेकिन आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि एक्सपोजर आपका किस तरीके का है, उस एक्सपोजर के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति है वो कल की डेट में एक्स्ट्रावर्ट हो सकता है। थियरी पुरानी है कि जो आपकी पर्सनालिटी एक बार डेवलप हो गई वही लाइफ लॉन्ग रहेगी। अब वो थियरी पुरानी हो गई है। थियरी ये है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, जिस पर यदि आप अपने पर्सनालिटी पे काम करें। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपनी पर्सनालिटी आप जिस तरह की ज़रूरत है उसके हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। मोदी जी की पर्सनालिटी है, उन्होंने वो पर्सनालिटी डेवलप की, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आप बड़े लोगों को आप देखेंगे, लीडर्स को देखेंगे, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की है। हो सकता है कि एक समय में वो एक्स्ट्रावर्ट रहे होंगे, वो शाही रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में वो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यदि आपको कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ वो ग्रेजुएट मांगते हैं। आप बीकॉम पढ़े हैं, बीएससी पढ़े हैं या बीबीए पढ़े हैं, उनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उनके यहाँ आप एमएससी साइकोलॉजी में सीधे जा सकते हैं, ठीक है। इवन आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, यदि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ये जो बैरियर है वो समाप्त हो जाएगा। किसी भी फील्ड का व्यक्ति वो यदि एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो वो साइकोलॉजी आके पढ़ सकता है। यदि हम एमटेक का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, भले हमने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो हम जाके एमटेक पढ़ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये फ्रीडम मिली है। सर, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एमए साइकोलॉजी एंड एमएससी साइकोलॉजी? उसमें जो बीएससी में है, खासकर जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे जब भी आप बीएससी में पढ़ते हैं तो आपको जूलॉजी पढ़ाया जाता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है बिहेवियर को समझने का, वो ज़्यादा, जैसे किस तरीके से हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो जूलॉजी और केमिस्ट्री उसमें आप पढ़ते हैं, उस तरीके से बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बीए में थोड़ा सा हम उसके साथ साथ जो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है उसको ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि किस तरह से सोसाइटी हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा अजीब सा सवाल, जैसे ना मैं अगर किसी को कहता हूँ साइकोलॉजी, सवाल है, अजीब है या नहीं है? सर जैसे वो लोगों के माइंड में ऐसा परसेप्शन है कि ये तो पागलों का डॉक्टर बनेगा, या फिर सर और भी जैसे टैबू जुड़े, जैसे कहते तो लड़कियों का सब्जेक्ट है, लड़के इसमें क्यों आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं। और सर इवन मेंटल हेल्थ को भी सर स्पेशली मेन का तो एड्रेस ही नहीं किया जाता है, कई ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अगर मैं हॉस्टल में दोस्तों को कहूँगा तो कई लड़कों को डिप्रेशन नहीं होता है, ऐसे सर कई सारे ऐसे, मतलब अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो सर बहुत सारे और भी चैलेंजेस अलग से ही है, सर उसको हैंडल करना भी बहुत दिक्कत है। ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, हम प्रोफेसर बन गए। तो एक एग्जाम्पल तो हम ही हैं तुम्हारे सामने, और हम पागलों के डॉक्टर भी नहीं हैं। सिंपली ये जो टर्म पागल है ना, वो अपने आप में
एक टैबू है। यदि आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप ये शब्द ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। आजकल कहा जाता है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसको दिव्यांग भी नहीं करते, उसके पास उस तरह की समस्या है। तो हम किसी व्यक्ति को पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको उसके पीछे का रीजन नहीं है, या कोई व्यक्ति उस तरीके से व्यवहार नहीं करता है जिस तरीके से बाकी लोग व्यवहार करते हैं, या जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, इस वजह से हम उसको पागल कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसके पीछे जाइए कि आखिर वो व्यक्ति वो व्यवहार क्यों कर रहा है। पता चला उसका जो सेरोटोनिन का जो लेवल है वो गड़बड़ा गया है, डोपामिन का जो लेवल है वो गड़बड़ा गया है, ठीक है, तो उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है। इसकी वजह से या किसी तरह का ट्रॉमा होने की वजह से उस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। कोई व्यक्ति जानबूझ के थोड़े पागल बनता है, या तो केमिकल इम्बैलेंस हो गया या कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, उसकी वजह से वो व्यक्ति उस तरीके से व्यवहार करने लगता है। आप एक दिन 2 दिन सॉल्ट मत खाइए, देखिए आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। 2 दिन सॉल्ट मत खाइए, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि सॉल्ट जरूरी है कम्युनिकेशन, न्यूरल कम्युनिकेशन के लिए। सोडियम और क्लोरीन और पोटेशियम और क्लोरीन नहीं रहेगा तो आपका ट्रांसमिशन ही नहीं हो पाएगा न्यूरल। ये सब चीज़ें यदि आप जानेंगे तो आप नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति पागल है। वो किसी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ये आप कहते हैं। वो पागल नहीं है, वो किसी तरीके से मानसिक बीमारी से ग्रसित है, ठीक ना। यही डिफरेंस है। यदि आप इन्होंने कहा ना कि साइकोलॉजी पढ़ लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। आप किसी व्यक्ति को पागल नहीं कहेंगे, आप उसको कहेंगे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। वो पागल नहीं है, वो बीमार व्यक्ति है। जब किसी को बुखार होता है, कहते हैं ना वो बीमार व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए भी आप बीमार व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बीमार है किसी वजह से। जब किसी व्यक्ति को बीमार कह देंगे और दूसरी तरीके से पागल कर, बिल्कुल पर्सपेक्टिव आपका बदल जाएगा। ये व्यक्ति बीमार है, बीमार व्यक्ति को जो देखने का आपका नजरिया है और एक पागल व्यक्ति को जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को बीमार मानिए कि वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति। बीमारी के पीछे कई सारे कारण हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकते हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो बीमारियां होती हैं। यही एक टाबू है हमारे समाज में। हम खुद को एक जो पागल टर्म है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये जरूरी है। इसीलिए मेंटल हेल्थ की पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेके आई है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी, जिसमें इस तरह के डिस्कशंस स्टूडेंट ग्रुप के साथ, इवन फैमिली में भी होने चाहिए, सो दैट इस तरह के इश्यूज को हम अर्ली आइडेंटिफाई करें और अर्ली इंटरवेंशन दे सकें ताकि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। इससे ज़्यादा कि आप करियर ऑप्शंस कैसे बना पाएंगे, इससे ज़्यादा कि स्टूडेंट्स लाइक मी जिनके पास साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी साइकोलॉजी से एक पर्सपेक्टिव क्या लेके जा सकते हैं। सर ने जैसे एड्रेस किया कि पागल सोसाइटी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, कितना डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड है अपने आप में। ये चीज़ आपको तभी फील होगी जब आप एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको जानने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं यू विल ट्राई टू डिग डीप विद इन द माइंडसेट कि कैसे जो है उसको टैकल करेंगे, तभी आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन पाएंगे। ऑब्वियसली सर ने पहले भी डिस्कस किया कि कैसे फोकसिंग ऑन स्टडीज़ ज़्यादा आपको रिजल्ट फेच करेगा। ऑब्वियसली आप अपने आप को पहले परिपक्व बनाइए, उसके बाद अपने माइंडसेट को चेंज करिए उसके अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज हाउ इट विल लीड। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस ग्रेट इनसाइट्स इनटू द सब्जेक्ट्स।